everyone. In the last few videos, we have learned about the various modes of reproduction, the progression of sexual reproduction in higher plants. In this video, we will be learning about the development of the seeds and fruit, apomixis, what is parthenocarpy, and what is polyembryony. So initially, we learned about the different parts of a flower, which consisted of the male and the female gametophytes, which are your androecium and gynoecium, which house it or help create the male and female gametes. They undergo pollination through various modes like anemophily, birds, insects, which help in transferring the pollen grains from the male reproductive part to the female reproductive part, which ultimately leads to fertilization. So the male gametes present in the pollen grain fertilize the female gamete, and one of them fertilizes the egg cell or the oosphere present between the synergids, whereas the other one goes and fertilizes the secondary nucleus, which forms the primary endosperm nucleus, which leads to the formation of an embryo from the ovule, and the ovule develops into the future seed of the plant, whereas the ovary develops into the fruit. In this section, we will be learning the formation of the seed from the ovule and the formation of the fruit from the ovary. So let's see the formation of the seed. So we have had integuments, which were, so let's just quickly draw a embryo sac. This had these egg apparatus cells, the cells on the callosal end, that is the accessory cells, the secondary nucleus with two cells. So post fertilization, it forms an embryo which has integuments, two integuments, and then we have the micropylar end, we have the callosal end, and then we have the nucellus and everything. So the integuments which were present, they form the seed coat, which are the testa and the tegmen. The testa is the outer part, which is thick and it is protective in nature, whereas the tegmen is the inner thin membranous part, which is not visible here. Then we have the nucellus, which was the nutritional tissue. So mostly it is used up. However, if it is present, it forms a thin papery layer. This is an example of a beet. So here it forms a thin papery layer that you can see here, and it is not really useful. So even if it's persistent, it's just present. It is not being used for anything. So the other components of an embryo were endosperm and the micropyle. So the endosperm actually, if it's only partially used, it remains in the seed. So like in coconut, we see coconut water, which is endosperm, which was just partially used up. And here we have an example of castor seed, which is showing us presence of endosperm between the seed coat and the cotyledons. So we have endosperm which is present between the seed coat and the cotyledons, and this still helps nourish the seed. So you can see that many of the oil seeds have a lot of endosperm in them. So in some cases it is used up, so it doesn't remain in the seed, and one of the classic example is the Pisum sativum. So you can see that just immediately after the testa, which is the seed coat we're seeing here, you see the cotyledons, the plumule and everything. So there is no endosperm present between them. The ones which show endosperm even in the seed condition, they are known as
albuminous or endospermic seeds, and the ones which do not are known as non-albuminous or non-endospermic seeds. When it comes to the micropyle, it usually persists and it just forms a small hole-like structure in one of the parts of the seed, and this is present so that it can absorb water. So when we have a seed, we want to germinate it, मतलब उसका प्लांट बनाना है, आप उसको मिट्टी के एक लेयर के नीचे रखते हो एंड आप उसे पानी देते हो, तो ये पानी उस सीड एब्जॉर्ब करता है एंड एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसका रेडिकल और प्लूम्यूल बनता है एंड देन इट फॉर्म्स द शूट. So that means this micropyle becomes the part from which the water enters the seed and helps it germinate. So it is an important part of the seed too. Later on we have fruit formation. Fruits are formed from the ovary. So what triggers fruit formation is when the seed was being developed, the seed releases certain chemicals or hormones called gibberellins or ethylene. दिस लीड्स और ट्रिगर्स ये ओवरी को बताता है कि अब फ्रूट बनाना है, तो जो ओवरी वॉल है वो पेरिकाप बनाता है. तो यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज़ मैंगो, वी हैव टेकन अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. ये एपिकाप, वन सेकेंड, ये एपिकाप, मेसोकाप और एंडोकाप, ये तीनों मिलके बनते हैं पेरिकाप. और सीड कोट और सीड, सो इतना सेक्शन सीड है, और इसके बाहर जो भी है ये आपका ओवरी से बना है, विच इज़ योर एपिकाप, मेसोकाप एंड एंडोकाप, विच इज़ टुगेदर नोन एज अ पेरिकाप. तो ये जो पेरिकाप है, इसमें आप अक्सर मेसोकाप जो पार्ट है फ्रूट का वो खाते हो, और जिस फ्रूट में पेरिकाप फ्रूट का बल्क नहीं बनाता है, यानी जो हम खाते हैं वो पेरिकाप का नहीं बना होता है, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. और जिस फ्रूट में हम पेरिकाप खाते हैं, यानी पेरिकाप का एक पार्ट विच इज़ योर मेसोकाप यूजुअली, उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. तो ये एप्पल है, इसमें आपका पेरिकाप बहुत रिड्यूस्ड है, तो वो सीड के अराउंड है, बट उसमें इतना ग्लूकोज का कंपोनेंट और इतना फ्लैश नहीं है, तो इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लैशी पार्ट बनता है वो इसके थैलेमस से बनता है, जो फ्लावर का पार्ट है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर गैमेटोफाइट, यानी जो गैमेट्स बनाता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्पोरोफाइट, विच इज़ द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये कैलिक्स या रेमिनेंट है. तो हमने सीड फॉर्मेशन देख लिया, फ्रूट फॉर्मेशन देख लिया, पर हम ये सीड्स बना क्यों रहे हैं? हम इतना सारा एनर्जी डाल रहे हैं, इसको स्पेसिफिकली इतना सारा ग्लूकोज लगता है, वाटर लगता है, मिनरल्स लगते हैं, और हम इसके लिए इतने सारे डिवाइसेस बनाते हैं, पॉलिनेशन के डिवाइसेस. क्यों? बिकॉज सीड्स हेल्प प्रोपेगेट पेरेंटल जीन्स. तो ये प्लांट्स का मेजर लुकआउट होगा कि उनको अपने जीन्स प्रोपेगेट करने हैं, उनको अपने जैसे और बहुत सारे प्लांट्स देखने हैं, विच इज़ देयर मेजर गोल. सो द सीड्स हेल्प इन प्रोपेगेटिंग पेरेंटल जीन्स. उसके बाद तो हम फ्रूट क्यों बना रहे हैं? तो हम सीड्स ही बना लेते हैं, हम फ्रूट्स क्यों बना रहे हैं? बिकॉज द फ्रूट्स नरिश द डेवलपिंग सीड्स. अगर आप देखोगे तो फ्रूट्स में बहुत सारा फ्लैशी पार्ट होता है, जिसमें ढेर सारा ग्लूकोज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है. सो ये जो सीड्स अगर डेवलप हो रहे हैं, फ्रूट्स उसको नरिश करते हैं. उसके अलावा फ्रूट्स उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि सीड्स जो है वो कभी भी देखोगे मोस्टली सारे सीड्स फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जब फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स उसको एनसर्कल करते हैं, वो बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर को उन सीड्स को अफेक्ट नहीं होने देते, बीट रेन, एक्सट्रीमली हार्श सनलाइट और एक्सपोजर टू केमिकल्स. तो फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स इन द इमेच्योर स्टेट. और इसके अलावा हम स्पेशल फ्रूट्स जो है वो स्पेशल डिवाइसेस भी बनाते हैं, ताकि फ्रूट्स सीड्स आराम से डिस्पर्स हो. एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ आपको. ये आपका पी पॉड है. अगर मैंने इसको ओपन किया, ये हाफ हाफ में ओपन होता है, अंदर आपको पीस के सीड्स दिखते हैं. तो ये पी पॉड का मैकेनिज़्म कैसा है? इसका जब सीज़न आता है,
ये अचानक से ओपन हो जाता है एंड ये यहाँ से कट हो जाते हैं एंड ये सीड्स दूर दूर गिरते हैं, जिससे ये अलग अलग जगह गिर के अलग अलग जगह पे प्लांट बना सकते हैं। Which means there are special devices which are developed for dispersal even by some of the fruits. तो ये अब हमने फ्रूट्स और सीड की डेवलपमेंट देख ली, हमने देख लिया ये क्यों होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट्स में। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी होता क्या है? अगर आप देखोगे तो अक्सर ये होता है कि कुछ सीड्स को आप प्लांट करोगे तो इमीडिएटली प्लांट उग जाता है कुछ दिनों में, पर कुछ सीड्स को आपको कुछ समय तक या तो उसको सोक करके रखना पड़ता है या फिर उसे एक टाइम देना पड़ता है कुछ मंथ्स का, जिसके बाद ही आप उसे पॉट कर सकते हो या प्लांट कर सकते हो कि उसका प्लांट उगे। तो यहाँ होता क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट। मेटाबॉलिक अरेस्ट यानी पहले हाफ ऑफ करके देखते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी यहाँ आपका सिंथेसिस होता है और ब्रेक डाउन होता है, चाहे आप ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हो या वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हो। अरेस्ट यानी बेसिकली उसको स्टॉप करना। तो इस प्रोसेस के टाइम पे वहाँ कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है या बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब बेसिक होता है, जैसे सिर्फ रेस्पिरेशन थोड़ा सा होगा, जस्ट इनफ कि वो सीड वायबल रहे, और बहुत थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस, विच मीन्स यहाँ पे वो सीड बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, बस पड़ा हुआ है। पर ये वो क्यों कर रहा है? इट फैसिलिटेट्स सर्वाइवल। तो अगर उसने अपना एनर्जी कंजर्व किया बाय नॉट परफॉर्मिंग बहुत सारा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उससे उसका सर्वाइवल फैसिलिटेट होता है। पर हमें ये फैसिलिटेशन क्यों करना है? हम डायरेक्टली उस सीड को उगा सकते हैं, पर वो सीड उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ एडवर्स कंडीशंस होते हैं, जैसे इफ़ ड्राउट है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो वो सीड अपने आप को मेटाबॉलिक अरेस्ट में डाल देगा, तो उससे वो मिनिमल एनर्जी स्पेंड करके अपने आप को ज़िंदा रखेगा। फिर जब एडवर्स कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे से बारिश होने लगेगी, मॉइस्ट सॉइल मिलेगा, फर्टाइल सॉइल मिलेगा, वो प्लांट डॉर्मेंसी छोड़ देगा, वो सीड डॉर्मेंसी छोड़ देगा और वापस जर्मिनेट होने के प्रोसेस में लग जाएगा। अब वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मायोसिस नहीं होता, पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन तो ज़रा सा भी नहीं होता। तो यहाँ फ्रूट्स और सीड्स बनेंगे कैसे? यहाँ एपोमिक्सिस में गेमेटोफाइट का कोई ऑर्गन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका ये मतलब है कि हमने पहले डिस्कस किया था, गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट वो होता है जो आपके सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, विच इज़ योर एंड्रोशियम, गाइनीशियम, एंड देन स्पोरोफाइट सेल वो होता है जो सेक्स ऑर्गन के अलावा बाकी पूरे प्लांट में सेल्स होते हैं। तो एपोगैमे में क्या होता है? गैमेटोफाइट का कोई एक ऑर्गन एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, पर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एपोमिक्सिस का कैरेक्टर ही है कि वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। गैमेटोफाइट ऑर्गन है तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, बिकॉज मायोसिस होकर ही गैमेटोफाइट एक ऑर्गन बनता है। फिर आता है एपोस्पोरी, जिसमें स्पोरोफाइट के सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि स्पोरोफाइट या बॉडी सेल, हम इसको बॉडी सेल भी कह सकते हैं, स्पोरोफाइट या बॉडी सेल में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो आपके स्किन सेल में या प्लांट के एपिडर्मल सेल में यूजुअली डिप्लॉयड सेल्स ही होते हैं। तो ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल एम्ब्रियो बनाता है जो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो बट इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो एपोस्पोरी से जो प्लांट बनेगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट का क्लोन होगा। अब एपोमिक्सिस के 3 टाइप्स हैं, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है
वो रिड्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस अंडरगो नहीं करता है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस अंडरगो नहीं करेगा तो ये डिप्लॉयड ही रहेगा, तो इससे एम्ब्रियो सैक बनता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। और अगर कोई न्यूसिलर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, ये एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो हम इसको एपोस्पोरी बोलते हैं। फिर हमारे पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मायोसिस अंडरगो करता है, जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो बनने के लिए करता है। तो उसमें से वो सिंगल हैप्लॉइड सेल जो है विच हैज़ एन, वो सीधा एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये हैप्लॉइड सेल से ही एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इससे जो सीड निकलेगा या जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, तो वो स्टेराइल होगा क्योंकि उसके पास मायोसिस अंडरगो करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एन। तो इस प्रोसेस से हम स्टेराइल प्लांट्स बना सकते हैं। और जो एम्ब्रियो बनता है एग से, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगैमी से, उसे भी आप नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस ही कहोगे। यहाँ पे तो मियोसिस अंडरगो करके इसने हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाया, बट यहाँ पे हमारे पास ऊसफोर तो ऑलरेडी बन जाता है जो एन है, या पार्थेनोजेनेसिस से बन जाता है। इसमें भी हैप्लॉइड ही होता है। तो these plants are also sterile and this is called as non-recurrent apomixis. Then we have adventive apomixis, जिसमें ये जो एम्ब्रियोस हैं वो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बन जाते हैं डायरेक्टली, बट ये सिर्फ एक एम्ब्रियो है। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो है जो पॉलिनेशन होके हुआ है वो भी बनता है। तो एक आपका होगा एक पेरेंटल एन और एक दूसरे पेरेंट का एन, और ये आपके ओरिजिनल पेरेंट का 2n होगा, विच मीन्स इसमें से एक क्लोन होगा और एक क्रॉस्ड ओवर नए जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वाला प्लांट। ठीक है, तो रिकरेंट में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल या न्यूसिलर सेल से बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा उसे आप डिप्लोस्पोरी बोलोगे, और अगर न्यूसिलर सेल से हुआ तो आप उसको एपोस्पोरी बोलोगे। नॉन रिकरेंट में माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस अंडरगो करेगा, वो एक सेल भी बनाएगा। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मायोसिस के बाद जो सेल बनता है उससे आपने बनाया तो वो भी हैप्लॉइड होगा, और अगर एक सेल से भी बनाया तो भी वो हैप्लॉइड होगा। तो ये एट द एंड ऑफ द डे आपको एक हैप्लॉइड प्लांट देगा जो स्टेराइल होगा। फिर एडवेंटिव में दो टाइप के एम्ब्रियोज बनेंगे, एक आपके फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो पोलन ग्रेन के मेल गैमीट से फर्टिलाइज हुआ, और दूसरा फ्रॉम सम अदर सेल्फ लाइक न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स, जो कि 2n है बट वो क्लोन होगा पेरेंट का, और फर्टिलाइज्ड सेल का क्लोन नहीं होगा। देन वी कैन टॉक अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी में भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं एक ही सीड में। तो जो हमने एडवेंटिव की बात की थी सेम केस है। इसमें डिफरेंट टिश्यूज विद इन द ओव्यूल फॉर्म एम्ब्रियोज, सो दे अराइज इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स ऑफ द सेम ओव्यूल। तो एक ओव्यूल के एक एम्ब्रियो सैक है, अगर इसमें दो एम्ब्रियो सैक्स बने तो इसको हम फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। और अगर एक ही एम्ब्रियो सैक में 1 2 3 जितने भी एम्ब्रियोज बने उसको हम ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। तो एडवेंटिव हुआ तो वो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बनेगा, एंड क्लीवेज हुआ तो डिवीजन ऑफ द प्रो एम्ब्रियो। तो इनिशियली जो प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर है इसी के
दो टुकड़े होते हैं, तो ये खुद भी एक एम्ब्रियो बनेगा, ये खुद भी एक एम्ब्रियो बनेगा, तो इसका अलग सीड बनेगा और इसका अलग सीड बनेगा। सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो हमें सीडलेस फ्रूट्स देता है, जैसे पपाया, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। पर ये होता कैसे है, इसमें क्या होता है, सीड्स बनते ही नहीं है, तो फ्रूट कैसे बनता है? क्योंकि हमने देखा था कि सीड्स रिलीज हार्मोन्स विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, जो हमारे एम्ब्रियो को स्टॉक से ओवरी वॉल से जोड़ता है, ये प्लेसेंटा, ये स्ट्रक्चर रिलीज़ करता है ऑक्सिन्स या इंडोल एसिटिक एसिड और जो भी हार्मोन्स हैं, और इससे क्या होता है कि जो ओवरी है उसकी साइज़ बढ़ जाती है, और जैसे जैसे ओवरी की साइज़ बढ़ जाती है वो फ्रूट बन जाता है। तो आपको आपका पेरिकाप, मेसोकाप, एंडोकाप मिलता है, बट आपको आपका सीड कोट और एम्ब्रियो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमने किसी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं किया है और ना कि हमने कोई सीड को डेवलप किया है। तो इसमें पॉजिटिव क्या है कि हम इसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, इसमें बाहर से हार्मोन्स डाल के, जैसे जिबेरेलिन्स अगर मैं बाहर से स्प्रे करूँ तो ये प्लांट पार्थेनोकार्पी परफॉर्म कर सकता है, जैसे पाइनएप्पल। या आई कैन डिले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डिले करने से पार्थेनोकार्पी कैसे होगा, प्लांट को लगेगा कि कोई वायबल पॉलन ग्रेन्स है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप प्लेसेंटा से ये हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और फिर फ्रूट बनाएगा। सो दिस विल लीड टू इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो ये हुआ आपका पार्थेनोकार्पी। तो इसमें मेजर बात यह है कि इसमें आपके फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, कुछ ग्रेप्स के वैरायटीज़ है, कुछ पपाया के वैरायटीज़ है, पाइनएप्पल है, ठीक है। एंड देन फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने 5 वीडियोस में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स कंप्लीट कर दिया है। यू कैन टेल मी विच चैप्टर यू वांट नेक्स्ट, और आई एम थिंकिंग ऑफ जेनेटिक्स या फिर इकोलॉजी। तो अगर आप कुछ और चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना या फिर बता देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।